European Union is the new segment of Europe examined. So it's a very basic level question. Okay, here the only thing which is required to be understood is new segment of Europe. So this segment of Europe is a term which was initially used for Ottoman Empire by Tsar Alexander of Russia. And why is this used? Because politically, economically, socially and religiously it was a very big empire and it was coming towards its halt. And that's why whenever we see weaknesses, whenever we see any kind of problem, we use the word new segment. New segment, like Europe was the segment of Europe was by 1914 it was not just Turkey, the whole Europe was the segment. ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे भी पूछ सकते हैं European Union is the new segment of Europe because eventually there are going to be some problems which are going to be faced by the European Union. Let us see the introduction of the topic. The concept of segment of Europe was first used by Ottoman Empire due to its disintegration and degeneration. However, in today's parlance, European Union can be considered as segment because बहुत अच्छे से उन्होंने कंसेप्ट को पकड़ लिया और डायरेक्टली उसके ऊपर हिट किया और उसके ऊपर बात किया. एंड दैट्स व्हाई आई वुड से इट्स अ वेरी गुड काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन. देन सारे चैलेंजेस समझा दिए. पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या है इसके सामने, लाइक ब्रेक्सिट वगैरह हुआ है, ठीक है. इकोनॉमिक चैलेंजेस लाइक पूरा आपका जो पिग्स है, यूरोजोन क्राइसिस हुआ है, उसके बाद में आपका माइग्रेशन क्राइसिस है, कोविड-19 क्राइसिस है, सारे क्राइसिस उन्होंने समझा दिए. और यहाँ पे अंदर कंसेप्ट भी समझा है कि अलेक्जेंडर फर्स्ट में पहली बार इसको यूज़ किया गया था, तो बहुत अच्छा सा इनोवेशन भी किया है इसके अंदर, राइट, चार्ट बना के. एंड सोशल क्राइसिस, डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है इन लोगों के बाद, रिफ्यूजी क्राइसिस है, कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स लाइक करंटली रशिया यूक्रेन वॉर इज गोइंग ऑन, तो पूरा करंट अफेयर्स को भी इसके अंदर इंटीग्रेट ला के रख दिया है, इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा. तो देखो बहुत अच्छा करंट अफेयर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू योर इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन या फिर यूरोपियन यूनियन, राइट. ब्रेक्सिट के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स. एंड ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम टू इनकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो बाद में इन्होंने पूरा वो भी लिखा कि व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय यूरोपियन यूनियन लाइक योर EU recovery plan, EU global gateway program. So though EU faces many challenges but still crucial for survival of European economic and social prosperity, and new reforms must take place into consideration. थोड़ा सा conclusion को और better कर सकते हैं because European Union is something which has come from 1991 till today. If we see, it is a major diplomatic victory of the people of Europe. That's how it has come into the phase. Okay, Germany and France, who were responsible for the wars, okay, eventually couldn't see eye to eye. Today they are part of the same economic union. So economic interdependence has been created, but yes, there are some challenges, but overall this is something which is going to sustain. No major problem is there with respect to European Union today. तो कंक्लूजन थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से मेंशन की हुई है. हाय, वेलकम टू प्रेप करियर आईएएस. टुडे आई एम हियर विद अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. वी आर स्टार्टिंग अ ब्रांड न्यू बैच ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल फाउंडेशन. सो इफ यू आर समबडी हु इज लुकिंग फॉर हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल, पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री से फ़ायदा क्या होता है, कितने मार्क्स आते हैं, टॉपर्स कितने निकलते हैं, एंड देन इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस देन यू कैन ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट. चलिए बात करते हैं. सो द प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम 23rd जुलाई. If you see from last few years, okay, हर साल टॉपर्स के 300 या उसके आसपास मार्क्स रहे हैं. In 2018 I was able to get 324 marks, and with the period of time we have produced large number of toppers. अगर आप देखोगे 17 में 316, 18, 19, 20, 21 as well as 22. Every year people are getting around 300 or more than 300 marks. उसके आसपास आ ही जाता है. In fact, the topper of 2023, she also got more than 300 marks. So it's a specific optional where you get good marks. प्लस व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल. देखो आपके जीएस में बहुत हेल्प करता है. प्रीलिम्स में कभी 10 से 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 से लेकर 40 मार्क्स तक मैक्सिमम आपका यहाँ से हो सकता है डायरेक्टली. GS1 में 100 मार्क्स के आसपास, GS2 में 50 एंड GS3 में 25 मार्क. लैंड रिफॉर्म्स वगैरह वाले जितने भी टॉपिक्स हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के, वो सारे हिस्ट्री ऑप्शनल से ही डायरेक्टली लिंक्ड है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शनल जो थोड़ा सेफ भी रहे और जिसमें मार्क्स भी एक अच्छे लेवल तक आ जाए पढ़ाई करके, तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल. With respect to our classes, okay, if you see our methodology is a bit unique. What do we focus upon? First of all, we give some specific classes which are concept oriented, कि भाई आप बेसिक चीज़ें समझो. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जैसे मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था. सो यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग इन द बिगनिंग. तो वो हम सबसे स्टार्ट में आपको कुछ बेसिक NCERT क्लासेस देंगे.
Then we'll go towards the core classes. These core classes are going to focus specifically on the topics of the history optional, and जो जितने भी topics हैं सब के ऊपर आपको अच्छे notes मिलेंगे, and side by side our classes are going to incorporate all the PYQs. जितने भी PYQs हैं सबको incorporate कर लेंगे. आपका एक अच्छा डेडिकेटेड रिवीजन टाइम मिलेगा शेड्यूल के साथ में. कंटिन्यूस असेसमेंट भी की जाती है कि हर 14 दिन के अंदर आपको एक टेस्ट देना है. इफ़ यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द टेस्ट, इफ़ यू आर एबल टू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपका अच्छे मार्क्स यूपीएससी में भी आ जाएंगे. बट फॉर दैट यू हैव टू बी रेगुलर, एंड वो अच्छी हैबिट इनकलकेट करने के लिए हमने ये स्पेसिफिक प्रोसेस बनाया. एंड फाइनली होलिस्टिक मेंटरशिप, नॉट जस्ट फॉर ऑप्शनल, फॉर ऑल द पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज ऑल्सो. एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर, हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स, हाउ टू क्लियर मेन्स, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स in the interview, all those things we focus on at Prep Career IAS. So once you are becoming part of this foundation course, it's not just about optional, it's also about your overall rank in the specific civil services itself. तो सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं. देन अगर क्वांटिटेटिवली बात करोगे तो लगभग 150 प्लस सेशंस में आते हैं, 90 प्लस हमारी कोर कंसेप्ट क्लासेस रहती हैं, 40 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन में आते हैं क्लास के अंदर. एंड फाइनली जो आपको कुछ वैल्यू एडेड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं टू मेक यू एट ईज विद द हिस्ट्री ऑप्शनल. क्यों? बिकॉज देखो कभी क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन दे दिया आपको, ठीक है, साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट मैप की जो साइट्स वगैरह उनकी कंपाइलेशन दे. तो ऐसे करके जितना भी एनालिसिस चाहिए होता है इस ऑप्शनल के लिए, उन सबको हमने डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में ऑलरेडी बना के रखा हुआ है. सो दैट हुएवर जॉइन्स दिस, उनको हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपके पास शुरुआत से ही एज रहे, और एज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है. सो दिस इज़ अबाउट द क्वांटिटेटिव. देन टेस्ट मिल जाते हैं आपको, 14-15 टेस्ट मिल जाते हैं ओवरऑल मिला के. देन वेबिनार्स होंगे मेरे साथ में, क्रिस्प हैंडआउट है, एंड मेंटरशिप सेशन तो साथ में चलते ही रहेंगे. इन 22 वी वर एबल टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन हिस्ट्री ऑप्शनल, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस. एंड दिस लेगेसी गोज अ लॉन्ग बैक. 2022 में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 21 में इनफैक्ट द रैंक 1 शी वाज फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज. सो इफ़ वी स्टडी वेल, इफ़ वी डेडिकेट आवरसेल्फ टू दिस ऑप्शनल कैन गिव यू वेरी गुड रिवॉर्ड. एंड हमारे साथ प्रिपेयर करोगे तो किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आई माई सेल्फ बीन एन ऑफिसर, आई माई सेल्फ बीन एन एस्पिरेंट ऑफ स्टडिंग विद दिस ऑप्शनल. मैंने हर चीज़ देखी है, एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 12 years टेल्स मी ओनली वन थिंग, दैट इफ़ यू आर स्ट्रेटेजिक, इफ़ यू आर मेथडोलॉजिकल, एंड इफ़ यू फोकस ऑन द राइट एरियाज, you can get very quick result. But yes, you have to be dedicated from your side. So if you are somebody with energy, somebody with dedication, become a part of this. 23rd जुलाई से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आपको अच्छे तरीके से मेंटर करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी गुड सिनर्जी बिटवीन अस, एंड आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू दिस, मार्कशीट वगैरह भी अगर आप देखोगे तो यू कैन सी इवन माई मार्कशीट, यू कैन सी आई गॉट 324 marks here. You can call on these numbers. These are the numbers through which you can get connected to our counselors. और counselors के through जितने भी queries हैं with respect to this program, you can eventually solve them out. आप offline visit भी कर सकते हैं in ORN, उसका भी एड्रेस वगैरह आपको वो सेंड कर देंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट.